पेपर लीक हो चुका है और उस पेपर लीक की वजह से 21 छात्रों ने अभी तक आत्महत्या की है। और पिछले दिनों आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं और विद्यार्थी जो दिन रात पढ़ाई कर कर मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ईमानदारी से पेपर देते हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी सरकारें हैं जो पेपर लीक कराकर अनडिजर्विंग लोगों को पैसे के दम पर डॉक्टर बनाना चाहती हैं, IAS बनाना चाहती हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 17 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर भी भारी मात्रा में प्रोटेस्टेंट्स इकट्ठा हुए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, सरकार मुर्दाबाद, 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 हाय 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 हाय, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मुर्दाबाद, 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 लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आपको सारे को पता है कि पिछले इतने लंबे समय ਦਮਨ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਪਾਪ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 152 पेपर लीक मोदी सरकार ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕੇਗੀ ਜਦ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਾਕਦੇ ਹੋਈ 3 ਪਾਤ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਕੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੜ ਗਿਆ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NGO ਹੈ। Everybody is standing united with the
स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। बच्चे तो 6 तारीख से बैठे हुए थे, तब तक कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी कहाँ थी? अभी तक क्यों नहीं उनके सपोर्ट में आप लोग क्यों नहीं? देखिए और मेरी क्यों बात, आज जब वो बच्चे आज मार खा गए तब आप लोग उनकी देखिए उनके आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप या तो भाषण दीजिए, आपका सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा। पेपर लीक को लेकर, एक मिनट, पेपर लीक को लेकर लगातार राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो है वो पूरे देश भर में 40 दिन से चल रहा है। आप कह रहे हो आज वो कर रहे हैं। कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो गढ़ है एजुकेशन सिस्टम का, वहां पर जाकर महारैली की गई, बच्चों से बात की गई। उसके बाद पूरे देश के अंदर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, इस मुद्दे को उठाया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। उसके बाद देहरादून के अंदर छात्रों के लिए कार्यक्रम किया गया जिसे उत्तराखंड की सरकार ने कैंसिल कर दिया, और वहां पर एक ऑल्टरनेटिव ग्राउंड करके वहां पर प्रोग्राम करना पड़ा। और जिस दिन कल राहुल गांधी आए, आज प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरने पे बैठे हुए हैं। आप जाके देख लो, टेलीविजन चैनल लगाकर देख लो इस समय, और सारे स्टूडेंट्स जो है उनके साथ वहां पे खड़े हैं। अगर स्टूडेंट्स की आवाज उठाना गलत है, पार्टी तो उठा ही रही थी, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी भी अपने ढंग से उठा रही थी, पॉलिटिकल पार्टी कह लो या कांग्रेस जनता पार्टी कह लो, वो भी उठा रही थी। हर व्यक्ति इस मांग को उठा रहा था। ऐसा नहीं है आप किसी दूसरी पार्टी के धरने में जाके नहीं बैठ सकते, पर जब वो धरना अत्याचार हो जाता है, बदल जाता है, जब लाठीचार्ज हो जाता है, आंसू गैस की फेंकी जाती है और निर्दोष बच्चों पर जो है अत्याचार होता है, तो फिर सबको इकट्ठे होना पड़ता है। फिर वो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई राइट थिंकिंग इंडिविजुअल हो। इस करके ऐसा नहीं है, मुद्दा तो बहुत देर से उठ रहा, मुद्दा तो हर कुछ ऐसा कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी कोई चुनाव नहीं है देश के अंदर, अभी मोदी सरकार के 3 साल पड़े हैं कि आज हम जाकर इस मुद्दे को हम कोई भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, और सच्चाई के साथ खड़े होना कोई गलत बात नहीं है। और मैं तो भाई साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल जाके उन मीडिया के लोगों से भी पूछो, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो दिखाते नहीं कि बच्चों के साथ इतने दिन अत्याचार हो रहा था। किसी भी नेशनल चैनल ने उस न्यूज को दिखाया क्या? उस नेशनल चैनल ने किसी ने भी बताया कि पेपर लीक में 21 बच्चों की आत्महत्या हो गई है? छोटा सा मामला हो जाता है, मोदी साहब को कोई फर्जी पुरस्कार किसी देश के अंदर मिल जाता है जहां की पॉपुलेशन ही 9500 होती है, और कहते हैं जी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया, पापा गुनिया पता नहीं कभी ऐसी जगह पे जाके उनको मिल जाता है। वहां पर जाके तो कह देते हैं कि जी उस न्यूज को तो सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज, मोदी को मिला बड़ा सम्मान, ये तो दिखा देते हैं। और बच्चों ने जो किसने आत्महत्या की, जो पेपर 152 लीक हुए, उसको तो कभी नहीं दिखाते। तो इस करके वो कहते हैं ना कि कुछ भी कहने से पहले, अपनी पंजाबी च कहावत है कि पीढ़ी थल्ले सोटा मार के दिखना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। राम मंदिर के मामले च भी चंदा चोरी किया गया, पेट्रोल का मामला तुसी देख रहे हो, महंगाई कितनी होगी, फर्जी पेट्रोल E20 बच्चों को दिता जा रहा है, और गडकरी साहब उससे नहीं बोल रहे। हुणे पेपर लीक के मामले दे लाठीचार्ज कर दिए, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई इस सरकार की? और अगर ऑपोजिशन आवाज नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन न करेगी फील्ड पे? बिल्कुल उतरी हुई है। अभी कांग्रेस पार्टी उतरी नहीं क्या? देश में भी उतरी हुई है, यहाँ भी उतरी हुई है, और हर जगह उतरेगी। आपको ये बता दें, अकेले अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी जी का भी और अमित शाह का भी इस्तीफा मांगेंगे। धन्यवाद।